پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ ملک بھر میں کہیں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آج پہلی تراویح ادا کی جائے گی۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں بھی کل پہلا روزہ ہوگا۔ ملائیشیا اور سری لنکا میں اتوار 2 مارچ کو یکم رمضان کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے حکومت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے لیے کوشاں ہے۔ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو ایک سہل پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ایک بڑا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ملک کے ممتاز صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے وقت سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کاروباری برادری کو درپیش مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ معاشی ٹیم کی کوششوں کی بدولت ملک کے میکرو اکنامک حالات میں خاطر خواہ بہتری آئی۔ آذربائیجان اور ازبکستان کے دوروں میں سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط بیرونی سرمایہ کاروں کے پاکستان کی معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے شرح نمو میں پائیدار بہتری کے لیے کاروباری شخصیات اور صنعت کاروں سے تجاویز مانگی۔ وزیر اعظم کی کاروباری شخصیات، صنعت کاروں اور حکومتی وزراء پر مشتمل کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ کمیٹی 2 ہفتوں کے اندر پائیدار شرح نمو کے حصول کے لیے حکومت کو تجاویز دے گی۔ وفد نے حکومتی معاشی پالیسی اور معاشی اشاریوں میں بہتری کی تعریف کی۔ دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ میں خودکش دھماکہ۔ JUI کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی سمیت 8 افراد شہید، 17 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور نے نماز جمعہ کے بعد خود کو مدرسے کے اندر دھماکے سے اڑا لیا۔ مولانا حامد الحق مولانا سمیع الحق کے بیٹے اور دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم تھے۔ وہ مئی 1968 کو اکوڑا خٹک نوشہرہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا حامد الحق 2002 سے 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ اپنے والد سمیع الحق کے قتل کے بعد مولانا حامد الحق JUI کے سربراہ بنے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ، کہا خودکش حملے میں مولانا حامد الحق حقانی کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم سے روکنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس بیانیے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دھماکے سے ظاہر ہوتا ہے فتنہ الخوارج اس کے پیروکاروں اور سہولت کاروں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دارالعلوم حقانیہ کی مسجد میں خودکش حملے میں نمازیوں کو نشانہ بنانے کے مکروہ فعل کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا حامد الحق شہید کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی حکام کو واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے، پوری قوم یکسو اور متحد ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد انسانیت کے کھلے دشمن ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دہشت گردی معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا میں بے امنی کے بارے میں عرصے سے رونا رو رہے ہیں، لیکن ریاست خاموش تماشائی ہے۔
अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ेकार को नाक़िस और जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमरीका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना उनके लिए बाइस फिक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तर-बंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि बाइडन इंतजामिया की इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारान को नताइज का सामना करना होगा। 2021 से 25 के दौरान अमरीका ने अफगान दिफाई फोर्सेस को 18 अरब डॉलर से जायद का सामान दिया। अफगान फोर्सेस को तैयारे, असलहा, गाड़ी और मवासलाती निज़ाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना ख़वारिज को दहशत गर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग तर्जुमान ने कहा कि सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने पर मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तुर्कम पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। अमरीका का F-16 प्रोग्राम के हवाले से 39 करोड़ 70 लाख डॉलर के इजरा का फैसला खुशाइंद है। में जदीद असला था और वो मुझ पे और मेरे दोस्त पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो एरिया में खुलेआम जदीद असला लहराए गए। मेरा ये सवाल है आपसे, ये VIP कल्चर कब खत्म होगा? कराची के इलाके बोर्ड बेस में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी, कानून और अखलाकियात दोनों की धज्जियां उड़ा दी। 2 शहरियों को सरेआम मारा पीटा, जदीद असलहे से सड़क पर चलने वालों को धमकाया। 20 सड़क पर पहले जीप को रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी। फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड के साथ मिलकर कार सवार अफराद पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इजलास में अब्दुल कादिर पटेल ने सवाल उठाए कि जालसाजी से बैंक अकाउंट खोले गए, नशा इस्लामाबाद से कराची कुरियर के जरिए जाता रहा, डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई, FIA और विफाकी एजेंसियां कहाँ हैं। कमेटी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि मुस्तफा आमिर केस में मुलजिम के खिलाफ तहकीकाती टीम में उसका रिश्तेदार शामिल है। कमेटी के अरकान विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी पर भी बरहम। चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम शहजाद ने कहा कि जब वज़ीर दाखिला का पूछो तो कहा जाता है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में है, वो पता करेंगे कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं या नहीं। अगर वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म हाउस में न हुए तो कमेटी कार्रवाई करेगी। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और गैर कानूनी कॉल सेंटर के मामले पर तफ्तीश के लिए FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुलजिम अरमगान के डिफेंस के घर से 2 अरब रुपए से जायद मालियत की क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें बरामद हुई। पुलिस की भी एक तरह से नाअहली है कि ये बात क्यों पता नहीं चली है। उस पर भी हमने कुछ तो ऑफिसर अभी से हमने सस्पेंड किए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट चल रहा है।
ارمغان کیس میں پولیس کی نااہلی ہے. کراچی پولیس چیف جاوید اوٹھو کا اعتراف, کہا کئی افسران کے خلاف کارروائی کی ہے. ارمغان 5 بار پکڑا گیا تھا. ارمغان سے تقریباً سب لوگ خائف تھے. اس کیس میں جو نام آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. ابھی ایک شخص کو پکڑا, اس کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے, جو منشیات فروشی سے پیسے کما رہا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات ہو گئی ہے. ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے نئے وفاقی وزراء مملکت اور مشیروں سمیت وفاقی کابینہ ارکان کی ملاقات, ملک کی معاشی صورتحال اور سیاسی امور پر گفتگو. شہباز شریف نے کہا کہ ایک سال میں مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی, جبکہ زر مبادلہ ذخائر اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. دیگر معاشی اشاریہ آئندہ برسوں میں مزید بہتر بنانے کے لیے محنت جاری رکھیں گے. اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ کا ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ. ایک نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے, یعنی کہ مزید وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے. تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ کل وزیروں کا ایک جھرمٹ کابینہ میں شامل کیا گیا. ایسے لوگوں کو نوازا گیا جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے. عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سرکس جاری ہے. ملک کی بھلائی کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ روز کی کانفرنس میں فسائیت کی انتہا کر دی گئی. یہ سیاسی اور اخلاقی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ایک کانفرنس نہیں ہونے دیتے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے لیے مزید 5 ججز کی منظوری دے دی. جسٹس ہاشم کاکر, جسٹس عامر فاروق, جسٹس شکیل احمد, جسٹس اشتیاق ابراہیم خان اور جسٹس صلاح الدین قمر بھی آئینی بینچ کا حصہ بن گئے. آئینی بینچز کے لیے نامزد ججز کی تعداد 13 ہو گئی. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں 3 ججز کی شمولیت کی منظوری بھی دی گئی. جسٹس ریاست علی, جسٹس عبدالحمید, جسٹس اسرار بھمرو کی آئینی بینچ میں شمولیت کی منظوری دی گئی. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے تقرر کی منظوری دی گئی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کی شمولیت کی منظوری. ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں شامل جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور علی شاہ, تحریک انصاف کے 2 ارکان سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے شمولیت کی مخالفت کر دی. چاروں ارکان نے رائے دی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے. پی ٹی آئی کا آئینی بینچ میں ججز شامل کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی ارکان نے رائے دی کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں یہ اختیار سربراہ آئینی بینچ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ جانے کا مشورہ. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ جا کر آواز اٹھائیں, پارلیمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے. وکیل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمیں حقائق کو ماننا پڑے گا. آپ کی جماعت کے خلاف ایسی صورتحال پیدا ہونے کا کوئی بینیفیشری بھی ہوگا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہر دور میں ایک جماعت کی بینیفیشری اور ایک کے زیر عتاب ہونے کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. دلائل سننے کے بعد عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. چیمپئنز ٹرافی کے بعد ٹیم میں سرجری کا امکان. شاہین, بابر, حارث رؤف اور نسیم شاہ کی چھٹی ہو سکتی ہے. عاقب جاوید کو بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے اہم متوقع فیصلے جیو نیوز نے حاصل کر لیے. ذرائع کے مطابق بورڈ حکام چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم کی پرفارمنس سے مایوس. ایونٹ کے بعد پاکستان ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز کی سیریز کھیلنے نیوزی لینڈ جائے گی. سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی. پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے فل ٹائم نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا جائے.
ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान के पॉइंट्स की तादाद 3 हो गई। जनूबी अफ्रीका की भी 3 पॉइंट्स हैं। ग्रुप बी से दूसरी टीम का फैसला कल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के बाद होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 12.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए, लेकिन बारिश के बायस मैच मंसूख करना पड़ा। तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस के शोबे में ताउन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का अक्कास है। सीपैक 2015 से पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अदातार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत की खलाई तहकीक के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मज़ीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनज़्ज़ुली की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस इदारे को मजीद बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनती है। इनके साथ बहुत ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है। 6 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो अब खत्म हो चुकी है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। ये तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी वो यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात ये है आज उनको बड़ा एतराज है। इश्तिहार उन्हीं मंसूबों के छपे हैं जो मरियम नवाज ने मुकम्मल किए हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी को इश्तिहारों से तकलीफ है तो ये तकलीफ मजीद 4 साल बर्दाश्त करनी होगी। इश्तिहारों पर खंबा नोचने से कुछ नहीं होगा। ये भी कहा कि आज वही यूट्यूबर्स बुजदार के लिए मरे जा रहे हैं जो उन्हें बानी PTI की नाकामी की वजह करार देते थे। सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभालेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात देने के लिए पुराज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRTs को मजीद तरक्की देने पर काम करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज मईमुर रहमान ने कहा है काबीना में फौज सफर मौज की मजम्मत करते हैं, पार्लियामेंट फेक है, क्या इस पर भी कोई पैका लगेगा? कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JUI समेत जिसने भी 26वीं तरमीम में साथ दिया उसने जुर्म किया। ये भी कहा कि NPM और पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कल एक वजीर डबल डेकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चलाकर दिखा दे। अपर औरंगजेब के इलाके सामा मामोज़े बाजार में धमाका, एक शख्स जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका, एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर और सेंटिमेंट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में बर्फबारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
नीलम के बालाई इलाकों अड़नकेल, खलमत और ताओबट में 3 फुट जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मवासलाती निजाम मुतासर, बर्फानी तोदा गिरने के बाद शाहराह नीलम शारदा से ताओबट तक बंद। गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, लाहौर, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान, चीचावतनी, बिहाड़ी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। हाफजाबाद और गुजरावाला में शदीद जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। TDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती हादसे से मुतालिक एक ऑडियो ने सवालात उठा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक लीक ऑडियो में यूनानी हुक्काम ने कश्ती के कप्तान को हिदायत दी कि वो मदद के लिए आने वाले जहाज को बताए कि तारकीन वतन यूनान नहीं बल्कि इटली जाना चाहते हैं। 90 मिनट बाद एक और कॉल में यूनानी अफसर ने मदद के लिए जाने वाले जहाज के कप्तान को कहा वो अपनी लॉग बुक में लिखे कि मुहाजिरीन यूनान नहीं जाना चाहते। बच जाने वाले अफराद ने दावा किया कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को गलत तरीके से खींचकर उल्टाया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बाद में जिंदा बच जाने वालों को खामोश रहने पर मजबूर किया। 14 जून 2023 को यूनानी समुद्री हुदूद में कश्ती डूबने से 650 से ज्यादा तारकीन वतन हलाक हो गए थे। Get ready for an electrifying face-off. Sindh Chief Minister Murad Ali Shah is set to take on Pakistan's under-18 chess champion Mehak Maqbool, who just won the national title. Is from a Sindh government school, SMB Fatma Jinnah, adopted by Zindagi Trust. Will the CM's strategy outplay the young champion? कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जीतेंगे या अंडर-18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल। शतरंज का मुकाबला कल सुबह 3 बजे होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय के जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर-18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम किया था। जियो न्यूज और जियो सुपर ने एक बार फिर मैदान मार लिया। पाक भारत टाकरे के दिन सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। हर जगह जियो न्यूज और जियो सुपर सबसे आगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें कल कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लिश टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका के हेड कोच रॉब वॉल्टर का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतकर सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करेंगे। वो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर कुछ नहीं कह सकते। भारतीय टीम अगर तमाम मैचेस दुबई में खेल रही है तो इस पर क्या कहा जा सकता है। इंग्लिश टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम का कहना है कि टूर्नामेंट में उनकी टीम अपने दोनों मैचेस जीत सकती थी, अहम मौके जाया किए। जोस बटलर की कप्तानी का इस तरह से इख्तिताम होने पर दुख है। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए का लीडर कौन, फैसला इस बार को भारत और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। दोनों टीमें दुबई में ग्रुप का आखिरी मैच खेलेंगी। अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने ट्रेनिंग सेशंस किए। टीवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में खेलकर मजा आया। वहां के मैदान न्यूजीलैंड के लिए खुशकिस्मती की अलामत रहे। दूसरी जानिब भारत के विकेट कीपर बैटर KL राहुल ने कहा दुबई में रन बनाना मुश्किल है, विकेट पर खड़े रहना जरूरी है। टूर्नामेंट में कोई टीम आसान नहीं। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ हमेशा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर कप्तानी से मुस्ताफी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कल चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। बटलर का कहना है कि टीम उनकी क़यादत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, नताइज मायूस कुन रहे। आइंदा वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम ग्रुप मरहले से आगे ना बढ़ सकी।
HPL PSL 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक होगा। मजमूई तौर पर 34 मैच कराए जाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच समेत 11 मैचेस होंगे। कजाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान PSL के 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पेशावर 8 अप्रैल को PSL के नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। PSL का फाइनल 18 मई को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लावारिसों के वारिस शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। उम्र भर इंसानियत की बेलौस खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा।